India is a multicultural society with different religious and ethnic groups. The celebration by the diaspora of their religious, cultural, and national festivals and events serve to reinforce the strong connection to homeland and their sense of national identity. The forging of a strong sense of national identity within the diaspora is therefore central to the model of diaspora relations that we are pursuing. One of the ways in which the diaspora reinforces national identity is by keeping alive their cultural and national traditions. These traditions promote a sense of oneness. Relations with our diaspora cannot ignore the role of religious, ethnic, and national traditions in sustaining our multicultural and national identities. Policies which promote the continued observances of religious, cultural, and national observances within the diaspora must become part of our engagement with the diaspora. If the diaspora is to become more integral in national development, it must benefit from accurate and updated information. We now live in an information age where information is now more easily accessible. But the very platforms which may make such information more accessible and more instantaneous can become sources of disinformation. It is therefore essential to establish platforms for the provision of accurate and timely delivery of information to the members of the diaspora and to counteract misinformation. We are also keen to transform the brain drain into brain gain. The technology now exists to also tap into our highly skilled diaspora. The diaspora possesses the skills and expertise that are needed for the modernization of our economy. We hope to be able to use ICT to be able to make greater use of the wealth of skills available within the diaspora, including in providing educational and health services. The diaspora integration model also embraces a role of our diaspora as an instrument of soft power. Many members of our diaspora have done exceedingly well in their adopted homelands and have risen to positions of prominence. Collectively, the size and strength of our diaspora in some developed countries attribute great influence to them. Many of the members of our diaspora are strategically placed in positions of influence to help protect and promote our national interests overseas. We look to our diaspora to project our external interests, including to protect our democracy and to defend our territorial integrity and sovereignty, particularly from external threats. We look to our diaspora to champion international causes which are germane to our national interests, including arresting climate change. Indeed, we also look to our diaspora to wield its influence in attracting and unlocking markets for our products. Our experience dictates that diaspora policies should not be cast in stone. They must remain flexible and adaptable to changing realities. The realities in my country are changing, and we have adopted a new approach to diaspora relations, one that is consistent with our goals and aspirations. Our experience has also led us to underscore the importance of exchanging ideas about diaspora relations, and equally about creating strong diaspora networks and improving links between such networks. Before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, distance may be keeping us apart, but our heart and soul connects us through faith and hope. You visited Guyana even before you were Chief Minister.
and you felt the love of the Guyanese diaspora. I visited and I studied here even before I became president, and I felt the love of the Indian people. We pray and hope that before the end of this year, we will have the good fortune of your visit to Guyana, so that we can share with you our development aspirations and the hope of a country that is so connected to you and the people of India. I therefore see the Pravasi Divas Convention as an important platform for not only exchanging ideas on this subject, but also fostering deeper and stronger ties among states which have significant diasporas, such as Indian Guyana. I wish every success to this convention. It has been my absolute pleasure to be here and to address you. And before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, on behalf of the government and people of India, of Guyana, and I'm sure of India too, we want you to know that our love and support is with you and your family during this difficult period in losing your mother. You have once again demonstrated to the world the importance of motherhood through your love, your commitment, your dedication, and your honor as a good son. May God bless you, and may God bless all of us. I thank you. Thank you so much, His Excellency. Thank you so much. The Ministry of External Affairs has launched a campaign, Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained, to promote safe and legal migration as well as overseas career prospects, जिसका मकसद है जागरूकता की मशाल जलाना कि सुरक्षित और लीगल चैनल के जरिए अगर कोई एस्पिरेंट जॉब के लिए ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, तो वो बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और प्रोडक्टिव रूप से विदेश में रह सकता है। इसी बात पर बल दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पोस्टेज स्टैम्प। May I now request Honorable Prime Minister of India and His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi to kindly release the commemorative postage stamp with the tagline, Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained. Thank you, sir. Thank you, His Excellencies. आज हर वो व्यक्ति जो भारत की जड़ों से जुड़ा है, वो एक उजियारे विश्वास से भरा है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या वो भारतवंशी हो। भारत की आज जो विश्व में धाक और साख है, उससे 21वीं सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता सा अलग ही नजर आ रहा है और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, जिनकी हर सांस में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है। May I invite the Prime Minister of the largest democracy in the world, Manya Shri Narendra Modi ji, to kindly address the gathering, kindly guide us and show us the way forward. गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी,
मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा।
इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. A digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत
ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरात में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात
एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंगें होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है
कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है, उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिसे लेकर के, उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। वी आर ग्रेटफुल एंड प्रिविलेज्ड विद द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ हिज एक्सेलेंस।
तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से इंदौर हमेशा से स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है और मध्य प्रदेश वासियों का, इंदौर वासियों का उन्होंने शुभकामनाएं दी और इस बात को लेकर उनकी तारीफ भी की है। पीएम मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर स्वच्छता ही नहीं, स्वाद की भी राजधानी है, जो कि कल हमने देखा था किस तरीके से 56 मार्केट पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम प्रवासी भारतीय और कैसे वहां पर जायके का लुत्फ लेते हुए दिखाई दिए थे। और इसी का आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इंदौर स्वच्छता ही नहीं, स्वाद की भी राजधानी है, ये भी उन्होंने कहा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब वो भारत में पहुंचते हैं। भारत में स्किल कैपिटल बनने की क्षमता है और इस क्षेत्र में जो भारत है वो आगे भी बढ़ रहा है। अगली पीढ़ी को भारत से यहाँ पर घुलना चाहिए, मिलना चाहिए और भारत में आना चाहिए। जो पीढ़ी विदेशों में रह रही है उस पीढ़ी को भारत में आना चाहिए, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि आप लोगों के सुझावों पर अमल करेंगे। जो सुझाव प्रवासी भारतीयों की ओर से दिए गए हैं, जो जिस तरीके से निवेश को लेकर मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, किस तरीके से निवेश करना है और जो आइडियाज हैं उनको किस तरीके से लेना है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, तो अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का
हिस्सा भी बनेंगे। और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करें। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सब ने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और अच्छा ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब जायके का लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इंदौर के खाने का जिक्र किया गया, मध्य प्रदेश के खाने का जिक्र किया गया और इंदौर की तारीफ तो उन्होंने की ही, साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो खाना है
सुप्रसिद्ध यहाँ का भोजन है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन जिसने भी साबूदाने की खिचड़ी को देखा, समोसे को देखा, कचौरी को देखा, नमकीन, जो कि इंदौर की नमकीन बेहद ही स्वादिष्ट है, जिसने भी इनको देखा वो अपने आप को रोक नहीं पाया, इनको चखने से रोक नहीं पाया। और ये देखिए यहाँ पर जो जायका है उसको चखते हुए जो भोजन है, जो यहाँ का प्रसिद्ध जितनी भी चीज़ें हैं, नमकीन हो गई, कचौड़ी हो गई, या फिर समोसा हो गया, शिकंजी हो गया, सभी को यहाँ पर चखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, न्यूज़ स्टेट ने दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग दुकानों पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चूंकि कहा यह जाता है कि 56 दुकान तो प्रसिद्ध हैं ही यहाँ पर, साथ ही सराफा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस गंभीरता को समझते हुए इंदौर में जिस तरीके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस समय चल रहा है, वहां पर जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साथ ही चूंकि कल देखा 56 मार्केट यहाँ पर पहुंचे, 56 दुकानें जो प्रसिद्ध इस समय इंदौर में है वहां पर पहुंचे सभी लोग, और जो भी जायका जो कि प्रसिद्ध है उसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। और आज भी इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि जो आगे पीढ़ी बढ़ रही है उनको बताना है कि भारत में तमाम विकल्प हैं और भारत घूमने के लिए ज़रूर आए, अगली पीढ़ी को भारत में घुमाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। चूँकि ऐसे में जो पीढ़ी है वो सिर्फ विदेशों तक ही सीमित ना रह जाए, उनको भारत लेके आना है, उनको भारत लाकर संस्कृति के बारे में बताना है। भारत की जो संस्कृति है, चूँकि भारत प्रसिद्ध ही इसलिए है, फेमस इसलिए है क्योंकि भारतीयों की जो संस्कृति है उसको देश से लेकर विदेशों में सराहा जाता है। अब चूँकि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लगातार यहाँ पर देखा है हमने कि किस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर चीज़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर की है। साथ ही लोगों को मोटिवेट करने से लेकर यहाँ पर लोगों को उत्साहित किया है। हमारा स्वदेश ही हमारा संसार है, ये कुछ अहम बातें मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, इंदौर पहुँचे हैं, और साथ ही शुभकामनाएं तमाम प्रवासी भारतीयों को दी गई मुख्यमंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, चूंकि 2023 में इंदौर में ये सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, प्रवासी भारतीयों का ये सम्मेलन, जिसमें निवेश के नया आयाम मध्य प्रदेश गढ़ रहा है, निवेश के नए आयाम मध्य प्रदेश गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी सम्मेलन को संबोधित प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।